A very good morning to you. Once again, you all are welcome in my class. So let's today we start something new topic in civics. That is chapter number 2, diversity and discrimination. So let's continue. So children, to begin with the chapter, let us again understand the word diversity. As you know, the diverse means to being different from one another. And India is known as a diverse country. What that it means? That it means that the people of India follow different religion, speak different languages, follow different tradition and custom, dress differently in many part of India, and so on. So these differences make India as a diverse country. But sometimes these differences may also lead differences in opinion and their negative aspects. So, in the previous chapter, we had studied about the positive aspects of diversity. But in this chapter, diversity and discrimination, we study negative aspect of diversity. So, sometimes diversity, what they may cause discrimination. And every time we not celebrated the diversity thing, generally we feel safe and secure with people who look, talk, eat, wear and think like us. डोंट यू थिंक सो? आपको ऐसा नहीं लगता? आप फील सेफ करते हो जब आप अपने ही जैसे पीपल को आसपास जो आपकी ही लैंग्वेज बोलते हो, आपके जैसा खाना खाते हो, सोचते हो, उनके साथ आप ज़्यादा फील सेफ एंड सिक्योर फील करते हो। बट इसके अलावा हम उन स्ट्रेंजर से अनफैमिलियर होते हैं एंड इनसिक्योर होते हैं जो कि हमसे अलग दिखते हैं। सो वी ऑफन हैव सर्टेन नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर। तो हम उनको दूर से देख के अगर किसी ने ड्रेस डिफरेंटली पहना है, उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, सो हम अपने जो माइंड में है वो क्या करते हैं, एक नेगेटिव थॉट या एक एटीट्यूड, एक ओपिनियन बना लेते हैं। हाँ, वो कोई जो पर्सन है, पीपल है, वो तो ऐसा होगा, वो पता नहीं कौन सी कंट्री से होगा। तो उनके लिए जो कंसर्न होता है हमारा, समटाइम हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। सो दिस इज द थिंग, what we can say, this is the thing, that negative aspects of diversity. So again, I tell you what is differences and prejudice. That India is known as a diverse country, and these differences which we practice here may lead to many differences, like in the mind of negative thoughts, opinion, and something to judge, prejudging of other people. So, like in India, major religion in the world, and all practice in India, more than 1600 languages spoken here, 100 dance form here, and different. Apart from these things, they are different in their attitude, opinion, dress, look, their talk, feel, play, eat and speak, and so on. So it creates many differences between the people and give the new rise to the prejudice. So what is the meaning of the word prejudice? Means आपको word को देख के ही पता लग रहा है, prejudice means prejudging, किसी को भी आप जज करना, प्री जज करना, उसको देख कर आप सिर्फ उसके बारे में एक नेगेटिव थॉट जो बना लेना। सो इट मीन्स अ नेगेटिव जजमेंट और opinion formed about a subject or group without knowledge or the facts. Means the negative feeling or the biased opinion about languages, skin color, clothes, so on. आप किसी को देख के जो कि जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, जिसका स्किन कलर डिफरेंट है, जो ड्रेस डिफरेंटली पहनता है, मीन्स कपड़े अलग पहनता है, उसको देखकर आप जो उसके दिमाग आप उसके लिए अपने माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हो, इसका मतलब होता है प्रेजुडियस। It means to judge other people negatively or to look them as inferior. Right? So I give you example of prejudice, like knowing a languages means don't know English, how stupid. एक ऐसा होता है ना कि अरे आपको इंग्लिश नहीं आती, आप तो बहुत स्टूपिड हो। तो व्हाट इज दिस अबाउट? दैट इज प्रेजुडियस। मीन्स वी मेक द थॉट, वी मेक आवर ओपिनियन कि ऑल पीपल हु नो इंग्लिश आर स्मार्ट, एंड इफ यू डोंट नो इट यू मस्ट बी स्टूपिड। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। हाँ अगर वो पर्सन है, इंग्लिश बोल रहा है, अरे वो तो बहुत इंटेलिजेंट होगा। सो अगर उसकी स्पोकन में इंग्लिश नहीं है तो दे आर स्टूपिड।
दैट इज द प्रेजुडियस कि आपने उसको देखे, आपने उसकी लैंग्वेज को देख के एक जज कर लिया, प्री जज कर लिया कि जो इंग्लिश बोलता होगा वो स्मार्ट है, जो नहीं बोलता वो डम्प है, वो स्टूपिड है. As many example leads to prejudice, like if we think that our religion is the best religion and other religions are inferior or have no significance. सिर्फ आप अपने को देख रहे हो, अपने कल्चर्स को अपने आगे रख रहे हो, अपने धर्म को आगे रख रहे हो और दूसरों के लिए नेगेटिव ओपिनियन कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग. दैट क्रिएट्स टू prejudice. So we are judging other religion negatively. हम सिर्फ अदर जो रिलीजन्स हैं, अदर जो जितने भी ये रिलीजन फॉलो हो रहे हैं, अगर हमारे माइंड में उनके लिए नेगेटिव थॉट्स है तो दैट इज रॉन्ग. एज अ रिजल्ट वी मे नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु फॉलो अदर रिलीजन. और इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप उनके लिए रिस्पेक्ट ही नहीं शो कर रहे हो उनके रिलीजन के लिए, तो आप उन पीपल्स के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं शो करोगे. सो वी मे नॉट रिस्पेक्ट द पीपल हु फॉलो अदर रिलीजन्स. As person may be prejudiced against another in term of languages, speak, culture he follows, skin color. अरे वो black है, ठीक है, काला दिखता है, अरे उसको friend नहीं बनाना. ठीक है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है, वो फ्रेंड नहीं बनाना. सो मेनी थिंग्स क्रिएट अ प्रेजुडियस. इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, रिलीजियस बिलीव हो गया, कस्टम हो गया, ठीक है, इन द लुक लाइक, हाउ दे लुक लाइक, उनका स्किन कलर हो गया. सो दैट मेनी एग्जाम्पल दैट क्रिएट्स अ प्रेजुडियस. राइट चिल्ड्रन, यू नो द मीनिंग ऑफ प्रेजुडियस आई थिंक वेल इनफ. सो आफ्टर द प्रेजुडियस व्हाट इज रिजल्ट? क्या रिजल्ट होगा? इट्स हर्ट एंड द फीलिंग ऑफ अदर. हर्ट करेगा ना. आप ये लुक एट द पिक्चर सीन हेयर. एक बॉय है अलग खड़ा है, बाकी सब बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है. इट मीन्स उस बच्चे को अगर आपने किसी भी बेसिस से आपने ग्रुप से अलग कर दिया तो उसके माइंड में कितनी नेगेटिव ओपिनियन है, उसकी फीलिंग कितनी हर्ट हुई कि अगर मैं भाई काला दिखता हूँ, आई एम वेरी पुअर पर्सन, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो ये मुझे अपने ग्रुप में नहीं ले रहे. एंड इट क्रिएट्स सम मेनी फीलिंग्स in their mind. So it hurts the feeling of other. It may lead to the tension between individuals or the group. It may causes disunity and disharmony. आप यूनिटी भी तोड़ रहे हो ना, आप कुछ पर्सन्स को अलग रख रहे हो एंड द बेसिस कि हाँ ठीक है वो क्रिश्चियंस है, वो मुस्लिम है, वी आर हिंदूज. आप किसी भी बेसिस पे अगर आप प्रिजुडिस करते हो, किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो इट क्रिएट्स डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी बिटवीन देम. ओके. So the negative aspects of diversity creates number one prejudice and number two is stereotype. The second word is stereotype. What does it mean? It is a fixed idea or image that many people have for particular type of things or person, but such an idea is often not true. What it means? Stereotype. बेटा जब आप एक अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेते हो दूसरे पर्सन के लिए, एक आइडिया क्रिएट कर लेते हो, उसकी उसके लिए थॉट क्रिएट करते हो, उसके लिए ओपिनियन क्रिएट कर देते हो, बट वो एक्चुअली में ट्रू नहीं होती है. बट वो क्या होता है? सिर्फ आपकी इमेजिनेशन. दैट इज स्टीरियोटाइप. समझे? स्टीरियोटाइप क्या होता है कि एक पर्सन को देख के अपने माइंड में कुछ भी थॉट क्रिएट कर लेना. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल लाइक बॉयज डोंट क्राई. लड़के रोते नहीं हैं बिकॉज दे आर इमोशनली स्ट्रांग. Did you think so? It is true. Then, if the boy is hurt, maybe it cry. Maybe he's crying. So girls are emotionally weak. Old people are forgetful. कि बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, वो भूल जाते हैं चीज़ों को. गर्ल्स बहुत इमोशनली वीक होती हैं. बॉयज डोंट क्राई, बॉयज कभी रोते नहीं हैं. एंड मैनी अदर. So this is very general example of stereotype that we create a fixed image and fixed idea of some people. So it creates stereotype. आ रहा है समझ? व्हाट इज मीन्स स्टीरियोटाइप? हम जब किसी को देखकर अपने माइंड में उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करना कर लेते हैं, उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं. ओके. So there are few examples of prejudice and stereotype. Both are some because both are the negative aspects of diversity. So like people belonging to the low caste are mentally weak. हम बोलते हैं कि ये लो कास्ट है, ये पुअर है, मेंटली वीक है. गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स. ठीक है, गर्ल्स आर इमोशनली वीक.
विलेजर्स आर फुल ऑफ सुपरस्टिशियंस क्या होते हैं, अंधविश्वासी लोग होते हैं। तो जो गांव के लोग होते हैं वो अंधविश्वास करते हैं। विलेजर्स आर डर्टी एंड नॉट हाइजीनिक, विलेजर्स होते हैं जो वो डर्टी रहते हैं, वो अनहाइजीनिक होते हैं। अर्बन पीपल ओनली केयर अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट अदर पीपल। ऐसा है, अर्बन मीन्स जो सिटीज में लोग रहते हैं सिर्फ उनको पैसा आता है, पैसा देखते हैं वो लोग, वो अपने क्या आसपास के जो अदर पीपल हैं उनको नहीं देखते। English is the best language, and other languages have no significance, especially in the process of globalization. कि इंग्लिश ही सबसे बेस्ट लैंग्वेजेस है और उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। रिच पीपल वर्क हार्ड while the poor people are lazy. Physically handicapped person are mentally weak. Asthma patients cannot become a good athlete. Poor people do not achieve higher goals. So these are some example of prejudice and stereotype जो कि हमने एक थिंग क्रिएट किया है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि इट इज नॉट ट्रू। दिस इज द एग्जाम्पल बट इट इज नॉट ट्रू। आर एक्सपीरियंस इन डे टू डे लाइफ चैलेंजेस ऑल दीज स्टीरियोटाइप। ठीक है, हम ये सब देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, दीज स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, वी हैव रिसेंटली सीन इन टीवी रियलिटी शो, ठीक है, डांस इंडिया डांस में भी हम देखते हैं हैंडीकैप होते हैं, हैंडीकैप है वो लेग से नहीं चल पाता है, फिर भी वो उसने डांस किया, किया ना किया। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आप देखते हो कि हाँ ये नहीं कर सकते बट ये फिर भी कर लेते हैं। एंड इसी तरह एक और है जो जिनको जो हैंडीकैप थे और उनको एपीजे अब्दुल कलाम से क्या मिला, उन्होंने प्राइज रिसीव किया, एक वुमेन ने। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन से एक वुमेन थी जो वो भी हैंडीकैप थी, और उन्होंने भी एपीजे अब्दुल कलाम से एक रिसीव किया है ये हैंडीकैप का ही प्राइज। और इसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक वेल ऑफ फैमिली, डिड नॉट बिलोंग टू वेल ऑफ फैमिली, बट हैड अ ड्रीम ऑफ बिकम अ साइंटिस्ट। तो क्या वो नहीं बने? नहीं, ही इज फुलफिल्ड हिज ड्रीम एंड ही ऑल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बने थे ही बने थे। सो ये हमारी सिर्फ थॉट होती है, बट बेटा इट इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। अगर आप कुछ भी करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडियस, right? So in this chapter we describe the two terms. Number one is prejudice, number two is stereotype. In the next class again we learn something new, inequality and discriminations. Okay, so class, I hope you understood the chapter and understand the term stereotype and prejudice. In the next class we learn more about of this chapter. Till then, thank you and have a nice day.